Okay. Kani's way. Second question. Kani's method. Sway. Second question. Okay, second question. So, पहले क्वेश्चन पे हमने देखा था कि सिमेट्रिकल फ्रेम थी और एक वन साइड से ही सिर्फ और सिर्फ लोड लग रहा था। अभी ये फ्रेम में हम देख रहे हैं कि आपका 3 मीटर 1 मीटर कॉलम पे भी आपका लोड लग रहा है और वन एंड फिक्स है और वन एंड हिंज है। सॉरी, दिस एंड इट इज हिंज and this end it is fixed. So there is 30 kilonewton, there is 15 kilonewton per meter और ये भी आपका ट्रायंगुलर लोडिंग लग रहा है तो यहाँ पे ज्यादा लोडिंग है। वन मिनट गाइस, there is 6 meter, there is I, 2I and 1.5I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट है, सपोर्ट भी डिफरेंट है, लेंथ भी चेंज है। थर्टी किलोन्यूटन, देयर इज 6 मीटर, देयर इज 2 मीटर, यानी ये टोटल 8 मीटर की लेंथ है इससे ट्वाइस। ओके, और यहाँ पे भी आपका लोडिंग लग रहा है 20 किलोन्यूटन बाजू के बीम से आने वाला और इसका बाजू के बीम्स का आने वाला मोमेंट भी लग रहा है 30 किलोन्यूटन इनटू मीटर। That is 40 kilonewton per meter. UVL, uniformly varying load. Okay, so this is complete question, guys. This is complete question. Okay, so that is A, B, C and D support. Okay, and D support. ये थोड़ा ऐसे झुके जैसी लग रहा होगा आपको। 1 मिनट, इसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं। D support. Okay, first step all over it is fix and moment. Firstly, first step क्या रहेंगी आपकी? That is fixed end moment. Step number 1. That is sway frame. Okay. FEM M bar AB, M bar AB. अब यहां से मैं अगर देख रहा, ये A है, so W into E2 by 12L square, 4L minus 3A guys. So anti-clockwise है, that's why minus. Minus, what is W? 15. What is A? A it is 3. Q by 12 L square. What is L? 4 square. 4L minus 3A, that is friction moment formula. रट्टा करना पड़ेगा। Okay, what is friction moment? WA square upon 12L square, 6L square minus 8LA plus 3A square.
ये सही है क्या बता दो प्लीज। सही है। व्हाट इज दिस फॉर्मूला गाइस? 14.77. 14.77 minus 14.77 in this moment 15 into 3 square by 12 into 4 square 6 into 4 square minus 8 into 4 into 3 plus 3 into 3 square. जो भी वैल्यू आएंगे m bar ba. What is value? What is value guys? m bar c 18.98. 18.98. Okay, correct one. WL square upon 30, WL square upon 20. जहां पे लोडिंग है वहां पे WL स्क्वायर अपॉन 20, जहां पे लोडिंग 0 है और मिनिमम है वहां पे WL स्क्वायर बाय 30. So 40 into 6 square by 20. How much? How much? 48. 72. M bar CD. ये 30 आ रहा. एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन, क्लॉकवाइज रिएक्शन माइनस प्लस. ओके, रिएक्शन देखना कैसे आ रहा. एक्टिंग क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रिएक्टिंग है. एंटी क्लॉकवाइज एक्टिंग आ रहा, क्लॉकवाइज रिएक्शन देगा. So that's why this C to D it is minus W into A into B square by L square. W into B into A square by L square. नेगेटिव क्यों? क्लॉकवाइज रिएक्शन. यहाँ पे भी आप बीम का निकाल सकते हो. एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन, क्लॉकवाइज रिएक्शन, BC. ओके, 33.75. minus 33.75 plus 11.25.
ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, ये आपको फिक्शन मोमेंट अच्छे से सॉल्व करते हैं आने को. स्टेप नंबर 2. rotational distribution factor. RF, rotational distribution factor, that is RF. What is RF? Joint member relative stiffness. Stiffness. Summation of relative stiffness. Then RF it is equals to minus 1 by 2 K upon summation of K. Which are the joints? B and C are the joints. So B and C. BA, BC. A is hinge. That's why 3 by 4. Intermediate 1. CB and CD, it is fixed. It is intermediate 1 1. So guys, BA, I by L, I by 4. Three by 16. Three I by 16. BC, 2I by 6. I by 3. CB, same. 2I by 6. I by 3. The next study is 1.5I by 8. इन्हें 2 by 3 भी बोल सकते हैं. ओके, 2 by 3 भी बोल सकते हैं. टू बाय 3 अगर मैंने बोला, सो 4 by 12 कर सकते क्या? 4 by 12, सॉरी 1 by 12. हाँ, 3 by 16. 1 by 15 येते. हाँ, 3 by 16. हाँ 1 minute, 1 by 8, 3 8 दोने 16, 3 by 16 येते ना. 1.5 म्हणजे 3 by 2 ना. हाँ सर. हाँ, 3 by 16. एडिशन. एडिशन गाइस, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अपने पास. $25 by 48. फर्स्ट वन. Oh,
25/48. This one Same. 25/48. same. Okay. Now 3/16 divided by 25/48 divided by 1/2 यानी डिवाइड इंटू 1.5 भी आप कर सकते हैं. मुझे डायरेक्टली RF बताओ माइनस में. This divided by this into -0.5 -0.5 आप डायरेक्टली कर सकते हैं. 1/2 यानी -0.5 डायरेक्टली. -0.18. -0.18. रेशो मध्ये सांग. -9/15. हा 9/15. -9/15. 9/15 50. 50 सॉरी 50. 50 ओके 9/50 I get cancel. Okay. -8/25. ये भी -8/25 होगा. फिर -9/50 होगा. मे बी चेक करके देखो. अगर एडिशन सेम आ रही है तो सही है क्या? हाँ सर. ओके. स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर. डन. टेबल स्टोरी कॉलम नंबर L LR C LR/L U K Can I erase this part? कर सकता मैं erase? हो गया आपका लिख के? बोर्ड कम गिरता गाइस इसको. UK -3/2 KC UKC square and then del. बोर्ड कम गिरता है. And then del it is equals to -3/2 KC by summation of UKC square. Okay. This is stable.
Okay. So story it is 1. लास्ट लेक्चर में हमने इसके बाकी यूकेसी वगैरह देख लिया था, इसका हमने लिख भी लिया था कि क्या नोटेशंस है। तो ओके, बी ए पिन सपोर्ट है यानी हिंज सपोर्ट है, एंड सी डी फिक्स सपोर्ट है। एल आपका इसका है 4 मीटर, इसका है 8 मीटर। ओके, एल। सो जो भी 4 मीटर है वो 4 मीटर इंटू 1.5 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? पिन है करके। तो ये कितना हो जाएगा? 6 मीटर। दोनों में से लार्जर लेंथ जो भी है तो वो कौन सी है? 8 मीटर है। सो दैट्स वाई रेफरेंस लेंथ, रेफरेंस एल आर, इट इज नथिंग बट रेफरेंस लेंथ इट इज 8 मीटर। एल आर बाय एल यानी 8 by 6, 8 by 8, 1. How much this? 1.33. 4 by 3 na? 1.33. What is U? U for pin support it is equals to 354. U for fixed support it is equals to 1. What is K? पहले इसके लिए K क्या है? 3 by 16. लास्ट इसके लिए भी K क्या है? 3 by 16 ही। पहला मेंबर यानी ए बी था, यानी बी ए था, बी ए। लास्ट मेंबर यानी क्या था आपका? सी डी था, सी बी एंड देन सी डी। तो सी डी दैट इज 3 by 16, 3 by 16. ओके, 3 by 16, 3 by 16 K. ओके, सो नेक्स्ट लास्ट इट इज माइनस 3 by 2 इंटू K इंटू सी। ये मुझे बताओ अभी आप कैलकुलेशन आराम से करो, कोई घाई नहीं है, आराम से लिखो, कोई घाई गड़बड़ नहीं। ये माइनस यानी 3 by 4 हमने क्यों लिया, क्या लिया? ये लास्ट वाले लेक्चर्स में जो मेरा 2.2 लेक्चर था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 था, 3.1 लेक्चर, उसमें मैंने बताया है, यानी स्वे के इसमें मैंने बताया है कि ये क्या रहता है, कि इसके टेबल का मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं किया होगा वो लेक्चर तो आप प्लीज वो कर लो, यानी उसके ये प्लेलिस्ट में ही लिंक है, तो वो आप पहला स्वे का क्वेश्चन आप कर लो तो आपको वहां से पता चल जाएगा। 0.37. नाही 0 पॉइंट मध्ये नको सांगू, याच्यामध्ये सांग, रेशो मध्ये सांग. -3i by 8. -9i by 32. 3 2 का
Yes, correct. Okay. Then UKC square. UKC square. ये भी आराम से करो. यहाँ पे आपको सबमिशन चाहिए. UKC square. यहाँ पे भी कोई घाई गड़बड़ नहीं है. I by 4. First I by 4. I by 4 is 3I I. by 16. 3I by 16. 3I by 16. Okay. Addition. Seven I by 16. 7I by 16. 7I by 16. आवाज नहीं आता सर. अभी बताओ. अभी आवाज आ रहा है? हाँ सर. हाँ. So 3I by 16. That sorry, 3I by 8 divided by 7I by 16. वैल्यू आएंगी. How much? Minus. Hello. Minus 6 by 7. Minus 6 by 7. And Minus 9 by 9 by 14. 14. So there is check. UK del, it is equals to 1 minus 1.5 unequal. UC del, sorry, UK UC del, it is equals to minus 1.5 unequal. Submission. तो करके देखते. UC del. What is U? U it is equals to 3 by 4. What is C? C it is equals to 1.33. What is del? Del is equals to minus 6 by 7. Okay, plus of. Again U. U it is equals to 1. C it is equals to 1. Into minus 9 by 14. How much?
हाउ मच? -1.5 -1.5 -1.5 -1.5, हेंस करेक्ट, हेंस करेक्ट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था और जरूरी भी नहीं है क्योंकि अपने मेथड से आता ही है, लेकिन आप करेक्ट है या नहीं करके आप चेक कर सकते हैं, करेक्शन निकालना जरूरी नहीं है। नाउ स्वे मोमेंट, नाउ स्वे मोमेंट। स्वे मोमेंट के लिए पूरी एक स्टेप लगती है यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगेंगे। ओके, आपका लेक्चर एग्जैक्ट 10:30 ही स्टार्ट होता या थोड़ा टाइम लगता है? हेलो, लेक्चर एग्जैक्ट 10:30 स्टार्ट होता या फिर थोड़ा टाइम 5-10 मिनट चलता है? चालतं ना, बस करून टाकू आपण आता सॉल्व, है ना, काही वेळ लागत नाही याला। सो फोर्थ इटरेशन मेथड जो भी है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वे मूवमेंट निकालते हैं। स्टेप नंबर 4, इटरेशन साइकिल में ए क्या निकलता अपना, स्वे मोमेंट। तो स्वे मोमेंट जब हम निकाल रहे हैं तब मुझे क्या चाहिए, m it is equals to p into lr by 3, p into lr by 3। lr रेफरेंस लेंथ इट इज 8, p आपको निकालना है अभी। अब p कैसे निकालोगे? थोड़ा टिपिकल है, ये आपने लिख लिया होगा तो मुझे मिटाना पड़ेगा। कैन आई अरेज दिस? यस सर। ओके, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट निकालो प्लीज। ओके, मुझे सिर्फ और सिर्फ LR तक रखना है इसको। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे फाइनल मोमेंट मेरा क्या रहेगा, 0 रहा है, m it is equals to 0। तो m it is equals to 0 करने के लिए यहाँ पे मेरा मोमेंट कितना था? सबसे पहले मोमेंट कितना था गाइस यहाँ पे? मोमेंट कितना था? फिक्शन मोमेंट, आई वांट फिक्शन मोमेंट। व्हाट इज फिक्शन मोमेंट हियर? ए बी का फिक्शन मोमेंट बताओ क्या था? -41 पॉइंट 14.77। तो इसका इसको +14.77 कर दो, +14.77 कर देता मैं और इसको 0 बना देता। तो जब मैं यहाँ पे बैलेंस कर रहा, ये क्या कर रहा मैं, बैलेंस, तो इसका हाफ कैरी ओवर इधर जाएगा, कैरी ओवर ऊपर चले जाएगा, तो इसका हाफ कैरी ओवर यानी 14.77 डिवाइड बाय 2, 14.77 डिवाइड बाय 2, हाफ कैरी ओवर इधर चले जाएगा। कितना है हाफ प्लीज गाइस? 7.38, 7.38। तो दैट 7.38 और ऊपर का फिक्शन मोमेंट कितना था मेरा? 18.98 ना? हाँ सर। तो इन दोनों की एडिशन होके यहाँ पे बता दो कितना रहेगा। ये मोमेंट मेरा फिर इधर है, 26.36।
26.36, तो यहाँ पे 26.36 लगेगा फिर 26.36। समझे क्या? जहां पे पिन है वहां पे मैं बैलेंस कर रहा, उस बैलेंस का हाफ कैरी ओवर मैं इधर दे रहा, हाफ कैरी ओवर देने के बाद जो भी मोमेंट है वो फिक्शन मोमेंट में मैं ऐड कर रहा। ये मेरा अभी फिक्शन मोमेंट यहाँ पे हो गया। दैट इज माई इनिशियल फिक्शन मोमेंट, दैट इज माई व्हाट, इनिशियल फिक्शन मोमेंट। ओके, इनिशियल फिक्शन मोमेंट मेरा यहाँ पे हो गया अभी ये। इसके बाद यहाँ पे फिक्शन मोमेंट मेरे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जो फिक्शन मोमेंट है वही फिक्शन मोमेंट रहेंगे। 30, 15, what are the friction moment is here। मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके भी लेक्चर है, तो अपन थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। 33.75 माइनस and it is 11.25, okay, that is 6 meter, that is 2 meter, okay, and here is पहले से ही 20 किलो न्यूटन का लोड आपका यहाँ पे लग रहा है। ओके, सो गाइस अभी क्या करना है आपको, आपको पी निकालना है। तो कैसे पी निकालेंगे? सबसे पहले इसके रिएक्शंस निकालने पड़ेगा आपको। तो रिएक्शंस कौन सा निकालना है? तो रिएक्शन आपको मैं कंसिडर करता कि ये इधर रिएक्शन दे रहा, दैट इज आरबी, और मैं ये रिएक्शन इधर कंसिडर करता था कि दैट इज आरसी, कंसिडर करता मैं। तो क्या लेना है? सीधा सीधा आपको मोमेंट लेना है यहाँ से। तो आपको आरबी और आरसी निकालना है। वही आप जब यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका उल्टा उधर होगा। तो सबसे पहले आरबी निकाल लेते हैं। टेकिंग मोमेंट about A, it is equals to 0, clockwise taken positive, minus RB, minus Q, anti-clockwise जा रहा, minus RB into 4, 3 meter, plus 15 into 3 by 2 plus 1, moment, 15 into 3 लोड हो गया, यहाँ से ऐड कितना होगा? 3 by 2 plus 1 पे ऐड होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज, प्लस क्लॉकवाइज है 26.36, it is equals to 0. What is RB? What is RB guys? कभी कभी इतना ही सिर्फ और सिर्फ पूछने के लिए आता है गेट में, आपको फिक्शन मोमेंट वगैरह सब कुछ देके रहता है। दे वांट ओनली स्वे मोमेंट। आपको ये निकालते आने कौन? इट इज आर्क्स इन गेट ऑल्सो। ओके, $34.32. 34.32, ओके ओके, 34.32। $7.2 sir. Assumption is correct. So जब भी फ्री बॉडी डायग्राम में अपन करेंगे तो ये इधर रहेगा 34.72। शिफ्ट करेंगे तो इधर का उधर, यानी फ्री बॉडी डायग्राम में करेंगे तो अपोजिट में वहां पे एक्ट करेगा, बीम पे। सो बीम पे अपोजिट में एक्ट कर दिया। द नेक्स्ट, टेकिंग मोमेंट अबाउट डी, इट इज इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव। तो यहाँ पे आरसी क्लॉकवाइज, आरसी इंटू 8 माइनस 30 इंटू 6 माइनस 33.75 प्लस 11.25, it is equals to 0. What is RC? What is RC? 25.31. 25.31. Okay, is it 25.31? Yes, 25.31. तो ये इधर है तो ये इधर होगा 25.31।
25.31. ओके, सो इसका सबमिशन जब हम करेंगे, इसका सबमिशन जब हम करेंगे तब अपने को एक P मिलेगा, सबमिशन ऑफ दैट. जब हम यहाँ पे P के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कि जो भी स्वे फोर्स है, स्वे फोर्स मुझे चाहिए, तो इसका सबमिशन करना पड़ेगा, इसका सबमिशन करना पड़ेगा. तो एज्यूमिंग दैट, कि मैं एज्यूम कर रहा है कि मेरा P फोर्स यहाँ पे इस तरह मेरा P फोर्स लग रहा है, तो मुझे सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस फॉर दिस अगर मैं कर दूं तो मेरा मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली P इट इज इक्वल टू भी आप कर सकते हैं. P it is equals to 34.72 minus 25.31 minus 20, or summation of horizontal forces is equals to 0 for beam BC. तो ये इसके लिए डायग्राम के लिए, तो P प्लस 34.72 minus 25.31 minus 20 is equals to 0. What is P? What is P? minus 10.59. Minus 10.59. 59. यहाँ से भी सेम ही निकल रहा, यहाँ से भी सेम ही निकल रहा क्या, प्लस में आ रहा होगा वहां पे, है ना? हाँ सर. एक मिनट आप, ये मत करो आप, ये मत करो आप. इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे. बेटर थिंग इट इज कि जो भी सबमिशन रहेगा, जैसे भी अभी क्या आ रहा आपका 25 प्लस 20 यानी 45 आपका इधर आ रहा है और 35 आपका उधर जा रहा है, तो नेट P क्या है मेरा, नेट डायरेक्शन मेरी ये है, यानी ये मेरी निगेटिव डायरेक्शन है, और इधर अगर रहेगा तो ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी. ओके, सो ये लेफ्टवर्ड स्वे है, राइटवर्ड स्वे. ओके, सो P आप निगेटिव ही लो, अभी लेफ्टवर्ड स्वे निगेटिव, मोमेंट इट इज नेगेटिव, ओनली किलोमीटर. So sway moment M it is equals P into LR by 3 minus 10.51 into LR. What is LR? LR it is equals to 8 by 3. So minus moment. Sway moment is minus. Story moment, sorry. Sway moment नहीं, ये story moment है. मैंने sway moment लिख लिया, sorry. That is story moment. So story moment, it is equals to minus how much? 28.18. Minus 28.18 minus 28.18. 18 रहता है कि 84 रहता है? 24 रहता है क्या है? 10.59 है. अच्छा 10.59 आएगा, फाइन होगा तर हा 24 येतं सलमान. हाँ सर. चालेल, काय हरकत नाही. सो इसके बाद की स्टेप आप खुद करो, आप खुद करो. ओके, इसके बाद की स्टेप सेम है, कोई चेंजेस नहीं है. टेबल लिखना है, टेबल लिखने के बाद खुद करना है. मैं आंसर सेंड कर देता. ओके, यहाँ पे आपका कानीज खत्म हो जाता, कानीज इज ओवर.